So the discussion topic for today's class, product development process. So in the unit, product types and development strategies, we have covered a lot of things, just like product meaning and its levels, product classification, then service and product differentiation, then product mix. So we have covered till now. So the last topic that we have discussed in this unit is the product mix, that is the set of all products and items a particular seller offers for sale. So it contains your product width, length, depth, and consistency. So yeah, so discussion topic for product today's class is product planning and development process. So as we all know that in offering of our products to consumers, we should come some new product or uh, new ideas of offering so that our customers buy those products and accordingly they create a basis for existence of our company or our organization. So what does product development means? It simply means that in order to offer something in the marketplace, what are the various stages, what are the various steps that can be adopted in the development of a product. So how we are going to launch a new product in the market, how we are going to develop a new product in the marketplace. So that calls for product development. So how we are going to develop a new product for the market and how we are going to see what are the various stages in that in the development of that particular product will come under product development process. So when we are going to develop our new product for the marketplace, there can be two ways to develop a new product. The first one is by acquisition or by acquiring. So by acquisition we mean simply we are going to buy a company, a patent, a license to produce someone else's product. So the first step is to, like, we are going to buy any company, it may be a patent or it may be a license to produce someone else's product. For example, we are going to start a new product in the area of food items. So when we are going to start a new product in the area of food item, so we may buy license, we may buy patent to produce new product. For example, if we are going to start in the category of food items, if we are going to start fast food, so we can buy license from McDonald's, from KFC, from Domino's, so that we can produce their product and sell accordingly. So the retail outlets that we see in our area, nearby areas like McDonald's, KFC's, or some other retail outlets of fast food companies. So they are the type of license. So as a company, what I am doing, I am getting license or permission from them to produce their product so that I can sell those products on their behalf. So first stage or first type to develop a new product is, or develop a product is, by acquisition. What I am doing, simply I am buying a company, a patent or license. I gave you example of patent license. So in the area of fast food, and in we are going to acquire or getting permission from fast food companies to produce their product and sell. In patent, we can give some like in technology, in technological aspects, we give patent to some companies to produce our use our technology. Buy a whole new company or buy a whole company means, let's take an example. I give you example of Tata, just a hypothetical example. Like Tata Motors is dealing in vehicle
components or vehicle. It is in the business of vehicles. So various transport goods or passenger cars, transport vehicles, it is producing. The Tata company is producing various transport and passenger vehicles. Suppose Tata company wants to enter in the business of insurance or banking. So what will it do? Either it will go for setting up its own new company subsidiary, or what it will do, it will go in the market and buy some existing insurance company. So that way of offering a product is by acquisition. So in acquisition there are three types. First one is buying a whole company, second one is patent, third one is license. So in buying whole company, so what Tata did in this particular example, Tata went into the market and bought a insurance company or banking company like Tata AIG Insurance. So this type of development of product or offering of a new product in the marketplace by acquisition is through the purchase of a company, giving a patent or giving a license. Another example of buying a whole new company. Let's take example of online retail stores. So we have heard the name of Walmart. So Walmart is a retail chain. So what was it doing? So Walmart bought the Flipkart. So that is the example of buying a whole new company. So in order to offer a new product or some new offering in the marketplace through acquisition, I can either buy a company, I can get a patent, or I can get a license to produce someone else's product. This is the first step in which I can offer products in the market. So I hope this is clear. The first step by acquisition. So we are going to offer new products or some types of new features in our existing product. So by acquisition, we are going to buy an existing company, or we are going to get a license, or we are going to get a patent. So this is the first stage or first type of offering a new product or development of a product. Second step. So the second step, what I am going to do, I am going to offer or develop a altogether new product that does not exist in the marketplace. So in the first category of acquisition, we are buying a whole company, that is there is an existing company, getting a patent, again there is an existing product, a license, again there is an existing product. But in the new development product or new product development, what we are going to do, we are going to offer altogether a new product. Let's take an example. Suppose we are going some tourist places and we want to book tickets. So let's take example of railways, because that will fit into our example well. So earlier what we were doing, we were going to ticket counters, filled up forms, and were booking our tickets accordingly. But what in the present time we are doing, we are just booking our tickets through online mediums from our home. So by the use of just clicks, we can book our tickets from the website of railways. Earlier we were what we were doing, we went to ticket counters, filled up forms, and then get booked our tickets. But in the present time, what we are doing,
we are simply booking our tickets from our home. So if we compare these two scenarios, in the first case, there was existing product. Ultimately, the product may be same ticket, but what we have changed, we have offered something a new variety. Like we are offering our customers to book tickets from home. So this is the development of new product. So the development of new products, what it contains, the development of original products, product improvements, product modifications, and new brands through the firm's own product development efforts. So there are four types of product, or some we can say processes that can be seen, or that can be there in new product development. So first one is, I am developing altogether a new product. Altogether a new product. Product improvements. There is some existing product and I am improving that product. For example, let's take example of internet services. Internet services. Suppose there is existing service of internet, that is speed of internet is 3G. Is 3G. So what product improvement can be in this? Offering internet services in 4G mode or 5G mode. So product improvement. Product modifications, I am either adding or subtracting something from that existing product. And new brands, altogether going into new line of product through the firm's own product development efforts, that is internal efforts. So the firm's research and development wing is developing new products through its internal efforts, its internal research and development. So in the new product development process, what I am doing, either I am developing altogether a new product, or making some improvement in the existing product, modifying existing product, and creating new brands. Let's take example of Hindustan Unilever Limited. That is the big company that offers most FMCG goods in the marketplace. Let's take example, like there is a soap, bathing soap. So it may be Breeze, it may be Lifebuoy, it may be some other product, like it may be Godrej, it may be Dettol. So the ultimate, the objective existing product is same, soap, bathing soap, but by offering various varieties, various we can say different introducing some fragrance or some other varieties or types. We are just improving our existing product, or we are making some modifications. So ultimate purpose of a bathing soap is same, but we are offering it into various varieties. Suppose in this example of bathing soap, we want to develop some original product. So what we can do? We can develop some shampoos, we can develop some lotions. So these are the original products, that is different from your existing product. In existing product, what we are doing? We are simply improving that product. We are making some modifications, or we are offering that product in new brands. Like I gave you example, Lifebuoy, Breeze, Godrej, Dettol, or whatever brand you may think. So in new product development, the development of new products or in the original product, product improvements, product modifications, and new brands through the firm's own product development efforts. So firm's internal research and development helps in development of new products. So I hope this is also clear. In the new product development, we either we are going to develop a original product,
making some improvements or modifications in the existing product, or we are going to start offering that product in some new brands through the firm's own product development efforts. So moving ahead, so product development process. Up till now, we have discussed what does product development mean, how a product can be developed. There are two ways, by acquisition and new product development. So four things combined in the development of new product: original products, product improvements, product modifications, and new brands through the firm's own product development efforts. Now come to the process, the stages that are there that take place in the development of new product. So the first stage in the process of development of a new product is idea generation. So in the idea generation, what we are doing, we are simply systematically searching for new product ideas. So we are systematically searching for new product ideas. So what we can offer in the marketplace that is not being offered in the marketplace. For example, in the segment of car, Tata Nano take a two-car advantage and offered a small car in the range of 1 to 1.5 lakhs. So that was the new product idea. How we can offer something new in the marketplace. So first stage is your idea generation. So we are generating ideas. How will our new product be? How it will be developed? What will be its features? What will be the marketplace where it can be offered? So all the very first stage, we are simply generating new ideas. And now how we can generate new ideas? So there are sources. The first one is internal idea sources. That is your like firm's research and development department, hackathons, entrepreneurial programs. So the research and development process that is being taken up in the firm can help develop or generate a new product. Hackathons, various online activities through like Skill India program, or like some if we see government websites, they source they offer some quizzes or some like competitions that can generate ideas for solving a problem. Technology hackathons, all these types of hackathons can play an important role in idea generation for a new product. Intrapreneurial programs, why intrapreneurial? It is within the company. First one is your entrepreneurial, that's entrepreneur that we say, but it is intrapreneurial. So here comes E, but here is I. So intrapreneurial within the program, within the company in itself. But when we go for entrepreneur, that is an outside company. So intrapreneurial programs, like you take some project, or the company asks you to develop some new ideas for new product. External idea sources like distributors and sellers. What your distributors and resellers suggest to you. Competitors, what is being offered in the marketplace. So that can be a new idea generation for a new product. Customers, when you invite your customers, or your customers ask some new things or some changes in your existing product, or when you see that there is something desirable by customer, or there is some problem from customers and that can be solved. So you can solve that problem by developing a new product. Crowdsourcing. So crowdsourcing, what we are doing. So we are inviting broad communities of people, of what type of people, like customers,
employs independent scientists and researchers and even the public at large into the new product innovation process. So the crowdsourcing calls for inviting various types of people so that we can come up with a new innovative process. Like I give you example of Dell. What does Dell do? It simply invites it on its platforms, its customers to suggest what they are looking for in its product. So these are the idea generation sources from where we can generate new ideas for a new product. After generating idea, what we go for? We go for idea screening. So why idea screening? What is the objective of idea screening? It simply serves as a reduction of number of ideas, or as we know, the subsequent steps of product development will need huge investment and time, so we cannot go with indefinite or innumerable ideas. We have to select and choose among those indefinite and innumerable ideas some 2, 3, 4, 5 ideas with which we can move ahead. So the purpose of idea screening is to reduce the number of ideas. Reduce the number of ideas. In the idea generation stage, we have generated lots of ideas or lots of product ideas. In the idea screening, we are screening from those product development ideas that we have generated in the first stage of idea generation to a manageable limit or manageable processes of product development. So the screening new idea or screening new product ideas to spot good ones and drop poor ones as soon as possible. That is the objective of idea screening. The purpose of idea generation is to create a large number of ideas, or the purpose of idea generation is to create a large number of ideas. That is, we want to innumerable or as large number of ideas as possible in the idea generation, but the purpose of the succeeding stage is to reduce that number. That is the idea screening. Product development costs rise greatly in later stages, so the company wants to go ahead only with those product ideas that will turn into profitable products. So in that process, we only want to go with those products that will offer profitable business or profitable ideas. So the purpose of idea screening is to reduce the number of ideas generated into the first stage, so that we can move ahead with a manageable number of ideas. Now, third stage, that is concept development and testing. So what we are doing in concept development and testing? In the first step, we have generated idea. In the second step, we have screened manageable or profitable product ideas from the stage 1. In the third step, we are developing the product concept and testing it internally, or some on the a few number of target customers. So the detailed version of the new product idea is stated in meaningful consumer terms is product concept. So what idea you generated and screened manageable numbers from those ideas. Now you are converting those ideas into a product. So what came into your mind to offer in the marketplace? Now you are thinking over it, how I can offer it into market in the physical product, into a shape of a product. तो मैं उस चीज को एक प्रोडक्ट के बीच रूप में कैसे ऑफर कर सकता हूँ? मैंने पहले स्टेज में क्या किया?
कि मैंने आइडिया जनरेट कर लिया, नया प्रोडक्ट बनाने का आइडिया जनरेट कर लिया, बहुत सारे मैंने आइडिया को जनरेट किया। सेकेंड स्टेज में मैं क्या करता हूँ, मैं उन आइडियाज में से कुछ आइडिया को रखता हूँ जो मेरे को लगता है कि मैं इनके ऊपर काम कर सकता हूँ और ये मेरे बिजनेस को प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। अब थर्ड स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में जो आइडिया मैंने रखे हुए हैं, अब उनको मैं एक प्रोडक्ट की शेप दे रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें ठीक है कि हम जो हमने कहा कि भाई इंटरनेट का हमारा, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, अब उसको तेज करना है, ये तो हमारा जो है आइडिया स्क्रीन में हमने डिसाइड कर लिया कि वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरनेट, बट हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरनेट, व्हाट विल इट कंसिस्ट, उसको हम एक थर्ड स्टेज में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की शेप दे रहे हैं कि हम उसको एक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज में हमारा यही है कि हमने जो आइडिया को फर्स्ट स्टेज में जनरेट किया, सेकंड स्टेज में उन आइडिया में से कुछ को चुना, अब जो हमने चुना है उसको हम एक प्रोडक्ट की शेप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मार्केटियर का टास्क क्या है यहाँ पे, टू डेवलप दिस न्यू प्रोडक्ट इनटू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स, फाइंड आउट हाउ अट्रैक्टिव ईच कॉन्सेप्ट इज टू कस्टमर्स एंड चूज द बेस्ट वन। तो वही है कि हमने जो आइडिया को सिलेक्ट किया, अब उसको हम एक फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में या हम सिंपली प्रोडक्ट के रूप में उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसको हम कैसे अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं, और उसमें से जो हम 2-3 प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें से हम बेस्ट वन क्या होगा उसको हम चूज करेंगे। इस वाले स्टेज के अंदर अभी ये सारा काम इंटरनली ही चल रहा है, यानी कि कंपनी के अंदर ही चल रहा है, अभी बाहर नहीं गए। हम बाहर जाएंगे जब मार्केट टेस्टिंग करेंगे सब्सिक्वेंट स्टेजेस में, तब जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंटरनली ही कर रहे हैं। तो यहां तक हमने बात कर ली कि हम उस आइडिया को एक प्रोडक्ट की शेप दे रहे हैं। अब आगे हम क्या करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर, कि कॉल्स फॉर टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर। अब हम एक उसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमने फाइनल प्रोडक्ट को नहीं बनाया है, अभी हमने सिर्फ जो हमारा आइडिया था उसको हम प्रोडक्ट की शेप में ले आ रहे हैं। अब उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम इसको एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ऑफर कर सकते हैं मार्केट के अंदर या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कॉल्स फॉर टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स एंड द कॉन्सेप्ट्स मे बी प्रेजेंटेड टू कंज्यूमर सिंबॉलिकली और फिजिकली। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हमने जो कॉन्सेप्ट को जो है टेस्ट करना है कंज्यूमर्स के ऊपर, कंज्यूमर्स का मतलब यहाँ पे हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज के ऊपर भी हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एप्पल अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करता है तो वो उस लॉन्च करने से पहले अपने इंटरनल एम्प्लॉयज को ही देता है यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शनैलिटीज दैट नीड टू बी इम्प्रूव। तो सिंबॉलिकली और फिजिकली, तो हम उसको सिंबल्स में कर सकते हैं या फिजिकल उसको प्रोडक्ट देख के कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग का जो है प्रोसेस है, जिसमें हम अपने जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट आइडिया था उसको जब हम एक फिजिकल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की शेप में ले आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट शेप को हम गिने चुने कस्टमर्स पे ट्राई कर रहे हैं कि क्या वो फिजिकल प्रोडक्ट की शेप ले सकता है, फाइनल प्रोडक्ट की शेप ले सकता है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि जो है मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब हमने यहाँ पे तो बात कर ली कि हम यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट की शेप में आएगा वो नहीं आएगा, उसको तो हमने कर लिया और कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे मार्केटिंग का रोल स्टार्ट होता है कि अब वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में कैसे ऑफर करेंगे, उसके क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, प्राइसिंग क्या होगी, एडवर्टाइजिंग का मेथड क्या होगा। ये सारी चीजें हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में हम कर रहे हैं।
तो उसके बाद का आइडिया क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कार टू द मार्केट। ये कार का एक एग्जांपल था कि हम कार को कैसे मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। तो अब ये जो एग्जांपल हमारा चल रहा है कि जो है हमारा, अगर हम उस जो हमने प्रोडक्ट बनाया इस वाले स्टेज में, उसको हम मार्केट के अंदर कैसे जो है ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट स्टेज में क्या हो रहा है, 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला हमने क्या किया कि हम अपनी टारगेट मार्केट को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हम अपने कस्टमर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स क्या होंगे, प्लान्ड वैल्यू प्रपोजिशन क्या होगी, यानी कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिलेगी इस प्रोडक्ट को परचेज करने से, और सेल्स क्या होंगे अकॉर्डिंगली, मार्केट शेयर क्या होगा, प्रॉफिट गोल्स पहले साल के लिए। ठीक है, पहले ईयर के लिए हमने टारगेट बना लिया कि हमारे कस्टमर्स क्या होंगे, हम कस्टमर को क्या ऑफर करने जा रहे हैं, हमारी सेल्स कितनी होगी, मार्केट शेयर क्या होगा, और प्रॉफिट हम कितना अर्न करना चाहेंगे इन द वेरी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट फ्यू ईयर्स। सेकेंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट की जो है स्ट्रेटेजी जो है स्टेटमेंट आउटलाइन करें, जिसमें उसका प्राइस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग बजट क्या होगा फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर। यानी कि इस वाले स्टेप में हम इसको कुछ सालों के लिए हमने ये जो है डिस्क्राइब कर लिया। अब सेकंड स्टेज में हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं कि हम इसको फर्स्ट ईयर के लिए पहले जो है करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए पहले हम इसको ऑफर करने की कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हमें क्या टर्म जो है बेनिफिट्स इससे डिराइव होते हैं, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट आउटलाइन द प्रोडक्ट्स, प्लान्ड प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, थर्ड में क्या करें, अब थर्ड में हम इसको फ्यूचर में कैसे ऑफर कर सकते हैं उसको हम पूरे डिस्क्राइब करते हैं। तो द थर्ड पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द प्लान्ड लॉन्ग टर्म सेल्स, प्रॉफिट गोल्स एंड मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि हम यहाँ पे प्राइस की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, मार्केटिंग बजट की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन था, टारगेट मार्केट था, सेल्स था, मार्केट शेयर था, प्रॉफिट गोल्स था। तो यानी कि जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होल्ड होता जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज होती है। तो यहाँ पे हमने प्लान्ड लॉन्ग रन सेल्स क्या होगी, प्रॉफिट गोल्स क्या होगा, और मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होगी। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है भाई अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज करेंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने डेवलप कर ली, हमने डिफाइन कर दिया कि हम उसको फर्स्ट ईयर में कैसे लेके चलेंगे, उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे उसमें कैसे लेके चलेंगे, और लॉन्ग रन यानी कि जब अपना प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, जब वो कस्टमर्स के बीच में जो है एक अपनी इमेज बिल्ड कर लेगा, अपनी जो है पॉपुलैरिटी गेन कर लेगा, तो उसको हम लॉन्ग रन में कैसे ऑफर करेंगे। तो वो हमारा थर्ड पार्ट में करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में। अब बिजनेस एनालिसिस करेंगे। अब बिजनेस एनालिसिस के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग आवर कॉस्ट, आवर सेल्स, आवर प्रॉफिट फॉर दैट प्रोडक्ट वी हैव डेवलप्ड। So a review of the sales, costs and profit projections for a new product to find out whether these factors satisfy the company's objective। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हम उसको शुरुआती दिनों में कैसे रखेंगे, पहले साल का हमारा बजट क्या होगा, आफ्टर उसको हम कुछ साल बेचते हैं, उसको कुछ साल या टेस्ट मार्केटिंग के तौर पे उसको हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, फर्स्ट ईयर का हमारा बजट वगैरह क्या होगा उसके लिए, और फिर हम फाइनली जब उसको लॉन्च करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यानी न्यू प्रोडक्ट के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हम उसको इसलिए एनालाइज कर रहे हैं सो दैट वी कैन नो वेदर दीज फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। क्या हमारे लिए जो हमने प्रोडक्ट को ऑफर किया है वो एक प्रॉफिटेबल हमारे लिए जो है और
एक वो होगा, कॉज होगा या नहीं होगा, whether that product be successful in the market or not। तो उस चीज को हम देख रहे हैं कि हम सारे एंगल से उस चीज को एनालाइज करके चल रहे हैं कि हमारी सेल्स कितनी हो चाहिए, कॉस्ट क्या होगी उसकी पड़ेगी, और प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या होंगे, और फिर ये सारे फैक्टर्स क्या हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम ये डिटरमिन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब हम इस वाले स्टेज में हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर, तो हम इंटरनली ये सारी चीजें कर रहे हैं कि अभी हम कंपनी के बाहर नहीं गए हैं। अभी हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो ये थिंक कर रहा है कि हम इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को एक फिजिकल प्रोडक्ट की शेप कैसे दे सकते हैं, और उस जो हमारा प्रोडक्ट की शेप आएगी, प्रोडक्ट की शेप से मतलब है कि न्यू प्रोडक्ट जो आएगा उसको हम टारगेट कस्टमर्स पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम टारगेट कस्टमर पे चेक कर रहे हैं कि क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वो बात है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद हम मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की बात की है, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस की। अब फाइनली हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर पार्ट एक स्मॉल कंज्यूमर बेस पे किए थे, तो उसको हम लार्ज स्केल पे यहाँ पे आके कर रहे हैं। तो डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट to ensure that the product idea can be turned into a workable market offering। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा प्रोडक्ट आइडिया था उसको हम एक वर्केबल मार्केटिंग ऑफरिंग के तौर पर ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा आइडिया था कि उसको हम एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप दे रहे हैं। अब जैसे टाटा नैनो का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो अगर हम टाटा नैनो के अंदर जो है इस वाले स्टेज में आए, आइडिया जनरेशन वाली पार्ट में है, तो आइडिया क्या जनरेट हुआ होगा, जो है उसके पीछे रीजंस लॉजिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम लोग उसको एक वन बाय वन अगर एनालाइज करें, तो आइडिया ये रहा होगा कि भाई कार जो 4-5 लाख की नॉर्मल आती है, अब ऐसा सेगमेंट है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, कि जो 1 से 1.5 लाख जो है के ऊपर जो है ज्यादा जा नहीं सकता। तो आइडिया जनरेट हुआ होगा टाटा जो है नैनो वालों के अंदर कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कार की शेप दे सके और उसका प्राइस भी कम, यानी कि फैसिलिटीज जो है वो कार की, बट वो प्राइस कम होगा। तो आइडिया जनरेट किया होगा उन्होंने वेरियस जो है टाइप्स ऑफ सोर्सेस से, इंटरनल से, एक्सटर्नल से, क्राउड सोर्सिंग से आइडिया जनरेट किया होगा। अब जब आइडिया जनरेट किया होगा उसके बाद फिर उस आइडिया को स्क्रीन किया होगा, यानी कि जो आइडिया आए हैं, अब भाई कार का था कि कार ही क्यों हम ऑफर करें, हम उसको फॉर एग्जांपल कि हम उसको 3 व्हील्स पे कर सकते थे, लाइक इन ऑटो रिक्शा टाइप, उसको हम एक कार की शेप दे देते, बट उसमें व्हील्स 3 रखते, लेकिन व्हील्स को 4 ही रखा। तो उस आइडिया को हम स्क्रीन कर रहे हैं कि क्या ये जो आइडिया जनरेट हुआ है कि 1 से 1.5 लाख रुपए में कार ऑफर करना, उसको हम एक प्रोडक्ट की शेप कैसे दे सकते हैं। तो इस वाले स्टेज के अंदर उस प्रोडक्ट की शेप दी जा रही है, उसको एक डिफाइन किया जा रहा है कि उसको जो है फीचर्स क्या होंगे, उसको हम फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को याद हो जब टाटा नैनो आई थी, जब स्टार्टिंग में आई थी, तो उसमें बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट किए गए थे, तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली चलता रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, अब उसके लिए क्योंकि कार स्मॉल है, प्राइस कम है, इन कंपैरिजन टू अदर कार्स जो है वो बहुत कम हैवी है, बहुत उसके जो वेट है वो बहुत लाइट है, तो उसको जो है उसके इन कंपैरिजन टू अदर कार्स उसके जो सारे फीचर्स हैं वो बहुत स्मॉल है, हम कह सकते हैं। उसके टायर से स्मॉल है, साइज जो है बाहरी जो है उसका आउटलाइन वो भी स्मॉल है, तो उसको हम मार्केट के अंदर ऑफर कैसे करेंगे, वो भी एक चैलेंज है। क्योंकि बाकी जो नॉर्मल कार है तो आपको पता है कि आपको कैसे करना, लेकिन आप जब एक टिनी साइज या स्मॉल साइज जब कार लेकर आ रहे हो
तो उसको आप कैसे ऑफर करोगे। फिर उसके बाद ये सारी बातें उसमें रखी गई होंगी, फिर उसके बाद उसका बिजनेस एनालिसिस किया गया होगा कि क्या वेदर इट इज पॉसिबल टू डेवलप अ न्यू कार इन द प्राइस रेंज ऑफ 1 to 1.5 लाख। तो उसके लिए सेल्स कितनी रखनी पड़ेगी, कॉस्ट क्या पड़ेगी, और प्रॉफिट प्रोजेक्शन क्या होगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारी कंपनी के जो एम है उनको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब फाइनली हम उस कार को बना रहे हैं। तो जब वो कार बन के आई फाइनली, तो बहुत स्मॉल साइज आई, उसके जो बाकी जो पूरा डिजाइनिंग था वो हर कार से जो है बिल्कुल अलग था, दूर से ही आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ पे ये बात आती है। तो डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न इनटू अ वर्केबल मार्केट ऑफरिंग। तो हम वही चीज कर रहे हैं कि हमारा आइडिया जब हमारा था, वो हमारा आइडिया था कि हमें एक कार बनानी है और वो कार हम 1 to 1.5 लाख में बना के उसको फाइनल अपने कस्टमर तक ऑफर कर सकते। तो अब उन्हीं सारी स्टेजेस से निकलता हुआ अब हम यहाँ पे पहुंचे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। सो हियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डेवलप्स द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट। The product development steps, however, now calls for a huge jump in investment. अब आपने एक प्रोडक्ट को उसको डिजाइन कर लिया, उसको बना लिया, लेकिन अब आपको मास स्केल पे जो है उसको डेवलप करना है। अब आपने टाटा नैनो जब बनाई तो उसको टेस्ट मार्केटिंग के लिए या फिर कस्टमर को अपने कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए 2-3 या 1 कार बना दी और उसको आपने इंटरनली उसको चेक किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि आप लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। सो यू विल नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉट्स ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो it will show whether the product idea can be turned into a workable product or not. A new product must have the required functional features and also convey the intended psychological characteristics. तो यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो फंक्शनल फीचर्स क्या था टाटा नैनो के अंदर, हमें एक कार चाहिए। तो कार के अंदर जो जो फीचर्स होते हैं वो क्या वो हमारा टाटा नैनो ऑफर कर पाएगी या नहीं। उसके बाद इंटेंडेड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम भाई कार ऑफर कर रहे हैं और उसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो 4 व्हील्स रखे हैं उसको 3 व्हील्स भी कर सकते हैं। तो दैट विल नॉट गिव यू साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऑफ दैट इज ए कार। इट विल मोर likely be an auto rickshaw। तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब कस्टमर वो बाय करने जाएगा तो उसके माइंड में क्या चलेगा कि क्या मैं कार खरीदने आया हूं या मैं ऑटो रिक्शा खरीदने आया हूं। तो जो 4 व्हील लगाए गए तो उसमें यही कि जो एक कार की पूरी उसको जो है शेप दी गई। तो वही है कि हम एक तो फंक्शनल फीचर्स जो है यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो जो है काम करना चाहिए, वो प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए, और उसका जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो माइंड में हमारी इमेज बनी हुई है कि भाई कार ऐसी होती है, उसमें 4 टायर होते हैं, एक स्टीयरिंग होती है, एक गियर बॉक्स होता है, एस्केलेटर के लिए पैडल होता है, जो है ब्रेक के लिए होता है, क्लच होता है, और उसकी फाइनल जो बॉडी होती है ऐसी होती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो एक इमेज हमारी बनी हुई है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं ऑटो रिक्शा का, तो झट से आपके माइंड में इमेज चेंज होगी, बाइक का इमेज चेंज हो गई, ट्रक का इमेज चेंज हो गई, ट्रेन का एग्जांपल दो आपकी इमेज चेंज हो गई, एरोप्लेन का एग्जांपल दो इमेज चेंज हो गई। तो यानी कि जो हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कस्टमर के माइंड में बना हुआ है कि नया जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमें फील होना चाहिए कि यस दिस इज कार और दिस इज स्कूटर, दिस इज ऑटो रिक्शा, दिस इज truck, this is bus, or whatever product is being offered to customers। तो जो भी आपका नया प्रोडक्ट है that product must have required functional features and also it should convey the intended psychological characteristics। So what image has been developed in the minds of consumer, it will also signify that image। In the case of Tata Nano, it was developed for a car, yes, this is indeed a car।
So product development. So under the stage of product development, we are developing or reducing our product on a large scale, on a mass scale. So you will need a lots of investment. What if your product does not attain sufficient attention in the marketplace? So your investment will go into waste. That will be not profitable to you. Even for that profitability, you won't be able to cover your cost. So you have to be very careful. So why we are going through these stages? Because there is systematic step that we should go for. क्या हमें किसी स्टेप में परेशानी आ रही है, क्या वो वर्केबल है या नहीं है, तो ये सारी चीजें हम जो है इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम फाइनल अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करेंगे, उसको जब डेवलप करेंगे, तो हमें वहां पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और है, तो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल, अब जैसे हमारा कोविड-19 की वैक्सीन का एग्जांपल है। अब जो वैक्सीन है, तो हर कंपनी मतलब जो हर कंपनी से मतलब है कि हर कंट्री डेवलप करना चाहती है, लेकिन अभी हम देखें तो 3, 4, 5 कंट्रीज ही उसकी रेस में आगे हैं। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसमें आप जो पहले देख रहे हैं कि उसके ऊपर एनिमल्स के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, उसके बाद फिर उसको जो है लैब्स में ट्रायल किया जा रहा है, उसके बाद उसको फाइनल जो पेशेंट्स हैं उन पे ट्रायल किया जा रहा है, वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। तो ये जो 3, 4 स्टेजेस हैं, जो एटलीस्ट जो 3 स्टेजेस हैं कि पहले में इतने टाइम का ट्रायल होगा, दूसरे में इतने महीने का टाइम होगा, तीसरे में इतने महीने का टाइम होगा। तो ये जो सारी चीजें लग रही हैं, ये सारी चीजें हमारी नए प्रोडक्ट ऑफरिंग में जा रही है। एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ये सारी प्रोसेसिंग है कि हम अपने हर स्टेज पे, अपने हर टेस्ट में श्योर होना चाहते हैं कि यस, दिस प्रोडक्ट इज वर्केबल एंड दिस कैन बी ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस टू मीट आउट द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। तो वही प्रोडक्ट है कि जो हमने वैक्सीन का आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वैक्सीन का क्या काम है कि हमें एक डिजीज है, उसके अगेंस्ट हमें एक क्योर चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए। तो जो हम देख रहे हैं कि 95% उसके जो ट्रायल में उसकी सक्सेस रेट है, किसी का 90% है, 76% है, 96% है, 90% है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जब हम इसको अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उन चीजों में हम सारी चीजों को देख के चल रहे हैं कि अब जो वैक्सीन है, सपोज करो कि वो अगर काम ना करे तो क्या होगा। तो उसके पीछे आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाया, वो तो आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी, किसी काम के नहीं है। तो इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें इतना करना है, ये हमारा आइडिया है, इसको हम एक वर्केबल कैसे डेवलप करेंगे। तो वेदर आवर कस्टमर, इज व्हाई डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग or the marketing department of any company is supposed to have lots of creative or people who think out of the box. मार्केटिंग इसीलिए मतलब कि जो अभी अगर किसी के पास सेलिंग का एक्सपीरियंस हो, सेल्स पे जब काम करने जाते हैं, तो सेलिंग के अंदर जैसे कि हमने मार्केटिंग के अंदर देखा था कि मार्केटिंग कुछ नहीं है कि हमें वो सेल करना है जो मतलब कि हमें हमारा कस्टमर परचेज नहीं करना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम उसको फोर्स करते हैं, उसको ल्योर करके, उसको मतलब कि तरह तरह की अपनी पॉलिसी बता के उसको जो है कुछ रिबेट्स देके, कुछ डिस्काउंट्स देके, कुछ अदर बेनिफिट देके हम नए प्रोडक्ट को उसको परचेज करने पे मजबूर कर देते हैं कि वो मजबूर है। भाई मार्केट में क्या कपड़े खरीदने हैं, एक जोड़ी उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन कुछ हम उसको ऐसा डिजाइन दिखा देते हैं, कुछ उसके ऐसे कपड़े के बारे में बता देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि एक जोड़ी 2 जोड़ी और ले लेता। कि हमें क्रिएटिव माइंड चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पीपल चाहिए, और जो चीजों को पहले से एनालाइज करके चले फ्यूचर में क्या हो सकता है, उन सारी चीजों को जो समझ सके, उसकी फोरकास्टिंग जो कर सके, वो चाहिए हमें।
तो इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि आपके दिमाग में एक आइडिया है, बट हाउ यू आर गोइंग टू convert that idea into a physical product that can be offered in the marketplace is nothing but the product development process. तो यहाँ पे बात होगी हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कि अब इस वाले स्टेज में हम क्या कर रहे हैं कि हम मास स्केल पे जो है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने बनाया उसको हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, यानी कि टेस्ट मार्केटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं कि अब हम सेटिंग्स में या रियलिस्टिक मार्केट कंडीशंस में उसको टेस्ट करेंगे। तो अब जैसे जो है क्या कहते हैं, टाटा नैनो का एग्जांपल है, जब उन्होंने फैक्ट्री में उसको चेक किया होगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में, अब वो फाइनली यहाँ पे जब बन गई तो अब उसको क्या करेंगे, उसको रोड्स पे ट्रायल करेंगे कि क्या वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है या नहीं। या फिर मैं मेट्रो की बात करूं, जब हम लोग देखते हैं कि कोई मेट्रो का फेज जब कंप्लीट हो जाता है या कोई नया स्टेशन बन जाता है तो उसमें 1 से 2 महीने ट्रायल होता है, उसमें 1 से 2 महीने का या ज्यादा टाइम का ट्रायल होता है। क्यों? कि वहाँ के जो उस पे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी जो लाइटिंग है, यानी कि जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है क्या वो वर्केबल है या नहीं है, क्या वो सेफ्टी के एंगल से, सिक्योरिटी के एंगल से, प्रॉफिट के एंगल से, हर तरह के एंगल से क्या वो जो है वर्केबल है या नहीं है। तो इसी तरीके से हम टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स में, रियलिस्टिक मार्केट कंडीशंस में। तो ये है। उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग का पर्पस क्या है कि हम देख सकेंगे वेदर दैट प्रोडक्ट कैन बी ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस और नॉट, या क्या हमारे कस्टमर उसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे। ये हमारा टारगेट है। और उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग के अंदर अगर वहां पे कोई लूप होल्स है, कोई कमी है, कोई ऐसा है कि कोई हमें उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो वो भी हम कर सकते हैं। देन आफ्टर टेस्ट मार्केटिंग कम्स फाइनली द कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको फाइनली मार्केट में जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेडी है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई माइनर या मेजर चीज नहीं है जिसको हम उस पर इंप्रूव करना चाहें। तो कमर्शियलाइजेशन। अब कमर्शियलाइजेशन के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे फिर हमारा एडवर्टाइजिंग का, प्रमोशन का जो है रोल प्ले होता है। तो कमर्शियलाइजेशन के देखते हैं कि हमारा एडवर्टाइजिंग का क्या पैटर्न होगा, क्या मेथड होगा, उसको हम एडवर्टाइज करेंगे, उसको प्रमोट कैसे करना है। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल देखना है कि हमें अगर फार फ्लंग एरियाज में उसको लेकर जाना है तो वो कैसे किया जाएगा। कमर्शियलाइजेशन में हम पूरा जो मार्केटिंग का सेट है वो जो है रोल प्ले करता है। दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, we started from idea generation, then we came to idea screening, then concept development and testing, marketing strategy development next step, business analysis further step, product development another step, test last step, and commercialization final stage of product development process. So this was the now we have completed our product development process. That is, we developed that idea and we offer that product marketplace into workable market conditions. Now comes the role of managing new product development. How we are going to manage that product which we have developed recently. तो वहां पे 2-3 चीज आते हैं। कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट एज सच है नहीं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको हम कैसे मैनेज कर जो है ओवरसी कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो द फर्स्ट वन इज कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट फोकसेस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू solve customer problems and create more customers
satisfying experiences। तो ये हमें बताया गया कि हम हमारे एरियाज हो सकते हैं जहां पे हम ये प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, अपने आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली नीड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे हम जो है प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, begins and ends with understanding customers and involving them in the process। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स को अपने इन्वॉल्व करके लेके चल रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल डेल का है, अपने कस्टमर को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आता है, बोलता है कि whatever you need in our product just specify and we will design our your needs and requirements। तो कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ टीम बेस्ड। तो टीम बेस्ड में हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, और उनको हम क्लोजली जो है वर्क करने की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो डिपार्टमेंट्स वर्क क्लोजली टुगेदर ओवरलैपिंग द स्टेप्स इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टू सेव टाइम एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस। तो इसका पर्पज ये है, टाइम बचाना चाहते हैं और जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, उसको जो है इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही है कि पासिंग द न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। हम जानते हैं कि अगर हमें एक प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें फंड चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए जो हमारा बाकी जो एक कंडीशन है वो चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो इसको हम इस वजह बगैर हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हमारा प्रोडक्ट मूव करें, हम क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ पुट करते हैं क्लोजली और कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो आप सब जो है एक कोलैबोरेशन में काम करेंगे। तो इसमें होता क्या है, द कंपनी असेंबल्स अ टीम ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट दैट स्टेज विद द न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब जैसे हम वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम नॉर्मल वैक्सीन की जब हम लोग न्यूज पढ़ते हैं तो लोग बताते हैं कि उसमें 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल का टाइम लगता है वैक्सीन डेवलप करने में। लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन विद इन अ ईयर आपके लिए रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट है, मतलब कि कोविड मतलब कि डिपार्टमेंट के कहने का मतलब है जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी वहां पे जो प्रोसेसिंग होती है वैक्सीन डेवलपमेंट को, उनको हम बोल दिए कि आप बाकी चीजों को स्टॉप कर दीजिए और ये हमारा प्रेफरेंस है, ये प्रायोरिटी पे है। तो हम कंपनी के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और एक टारगेट देते हैं कि यस वी हैव टू डेवलप दिस प्रोडक्ट विद इन दिस टाइम। तो वो चीज होती है, तो उसमें हमें फायदा मिलता है कि हम टाइम भी बचाते हैं और हमारी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होती है। द थर्ड वन इज सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें तो क्या होता है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये प्रोसेस था कि आइडिया जनरेशन पे आई, आइडिया स्क्रीनिंग पे, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। इस प्रोसेस से हम मूव करते हैं इस वाले स्टेज के अंदर जो हमारा है सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हम इनोवेशन डिपार्टमेंट खोल लेते हैं, या हम जो है एक उसी एंटरप्रेन्योरियल जो प्रोग्राम है उस टाइप पे कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, should be holistic and systematic rather than compartmentalized and half-hearted। तो इसमें क्या है कि वही कि हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें करते हैं। तो अवॉइड दिस कंपनी कैन इंस्टॉल एन इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम टू कलेक्ट, रिव्यू, इवेलुएट एंड मैनेज न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। तो ये हमारा पर्पज है कि हम एक जो है अलग से डिपार्टमेंट हमने खोल दिया कि हमारा जो भी आइडिया होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, इवेलुएट और फिर फाइनली उन आइडिया को मैनेज करेंगे। तो ये प्रोसेसेस है, मतलब कि ये टाइप्स हैं कि जिस पे हम अपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं कि हम उसको कौन कौन से हमारे जो है वो हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे जो है क्राइटेरिया हो सकते हैं कि हमें न्यू प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट